जी जी, मेरी आवाज आ रही है उसमें आपको? आ रही है। जी ठीक। हमारे जो नेक्स्ट प्रेजेंटर हैं वो डॉक्टर संदीप जस्सल हैं। और डॉक्टर संदीप जस्सल जो हैं वो पहले भी हमारे साथ आए हैं प्रोग्राम्स में। मैं उनसे नहीं मिली हुई, बट आई हर्ड अ लॉट अबाउट हिम। सो लेट मी इंट्रोड्यूस हिम अ लिटिल बिट। डॉक्टर संदीप जस्सल जो हैं वो इंटीग्रेटिव मेडिसिन डॉक्टर है। उनका जो हु होल्ड्स अ 6 year ग्रेजुएशन डिग्री इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, a post graduation in preventive medicine, a doctorate in natural medicine, and a certification as a diabetes educator, weight loss coach, and advanced cardiovascular life support provider by the American Heart Association. इनका तो इंट्रोडक्शन काफी लंबा जाता है, but today Dr. Sandeep Jassal is here with us to discuss why holistic health involves physical and mental and social well-being, and number two, how mind and body are connected, and how to achieve and maintain mental well-being, and food for body and soul. So Dr. Sandeep Jassal, welcome to the session today. आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. Over to you. I wouldn't waste any more of your time, and I'd like you to continue. Namaskar, salam, sat sri akal, everyone. Hello. I'm so very glad to be here. I hope my voice is audible to everyone. I have unmuted myself. सबको Yes. मेरी आवाज सुन रही है? जी Yeah. बिल्कुल. So thank you very much, Uzma ji, for inviting me once again to this August group of yours, where you do so much of value addition into the society and community, and you do so much through your wonderful organization and the team, of course. The whole team is wonderful with great efforts. So I would like to share my screen if it is possible. May I share my screen? Bilkul. I've allowed you, Dr. Sandeep. I've made you the co-host, so you can share your screen. Just a moment. So I'm very much, we all understand that for a healthy body and mind is governed by our surroundings and how we react to our surroundings and how we react to our circumstances. So a given set of circumstances, they are given to us by, uh, is everyone able to see my screen or not as yet? No, screen is not there. Just a moment. No. Yeah. Okay, here we go. Are we now able to see the screen? Now we see it. Now you can see. And you're able to see the other slides also, the next slides also in the bottom, right? Yeah, we can see the slides at the bottom as well. Okay, so if I do it this way, on Zoom, I have not done so many sessions. Still, you are seeing the other slides? Yes, I can, but I don't know about others, but I can. So here we are going to talk about one thing. Of course, there is a mind-body connection, and the whole new research has proven that there's a lot of body connection. अगर आप मुझे कहें कि मैं इंग्लिश में बात करूं या हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तो I'm comfortable with all these languages. तो ज्यादा हिंदी. हिंदी पंजाबी ठीक है जी. ठीक है जी. तो हमारे शरीर का पूरा प्रोसेस है, और हमारे माइंड का या हमारे मन बेसिकली दिल नहीं होता, वो ये होता है, जहन होता है, दिमाग होता है, जो अपने विचार बनाता है और हमसे वो काम करवाता है जो हमें अच्छे लगते हैं, या हमसे उन कामों से या उन लोगों से या उन सराउंडिंग से रिपल्सिव बनाता है, नफरत कराता है, जो हमारे
अनुरूप नहीं होते, विपरीत होते हैं, हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते, हमारे अगेंस्ट होते हैं, हमारी मर्जी के खिलाफ होते हैं, राइट। तो हमारे शरीर में जो कि एक मशीन है, ये जो मन है या दिमाग है, जहन है, ये विचारों के जरिए एक हार्मोनल लाइफ साइकिल पैदा करता है, जिसमें कि हम, अगर हमें स्ट्रेस होती है तो हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बनते हैं, जो कि कभी कभी हमारे फायदे के लिए होते हैं। जब हम रेस दौड़ रहे होते हैं तो हम कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में इंडल्ज कर रहे होते हैं। उस रेस में क्या चाहिए? एक माइंडसेट चाहिए जो कि किसी दौड़ने वाले को बाकी लोगों से बेटर दौड़ने में सक्षम बनाएगा। वो उसका माइंडसेट है। पेन उसको भी हो रही है, पेन बाकी लोगों को भी हो रही है, थकान उसको भी हो रही है, थकान बाकी लोगों को भी हो रही है। अब क्या चाहिए? पहले तो उसके मसल्स को खुराक चाहिए ताकि वो उतना दौड़ पाए, लेकिन उसके माइंड में इतनी पावर होनी चाहिए कि वो फिजिकल फैटीग को ओवरकम कर पाए अपनी स्ट्रेंथ के साथ, मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ। तो इसका मतलब कि कितना समन्वय, कितना कोऑर्डिनेशन उसके दिमाग और उसके शरीर में चाहिए कि वो सोच रहा है कि उसने रेस दौड़नी है, रेस दौड़नी है, और उसके मसल्स उसका साथ दे रहे हैं क्योंकि वो एक डिटर्मिनेशन के साथ उस रेस में दौड़ रहा है। लेकिन कई बार सर्कमस्टांसेस या हालात हमारे जब अनुरूप नहीं होते तो हम आउट ऑफ कंट्रोल फील करते हैं। हमारे एक्शंस भी हमारा कहा नहीं मानते, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो रेजिस्ट करें, वो रिपल्सिव स्ट्रैटेजीज की तरफ हमें लेके आए और हम मैदान छोड़ के दौड़ जाएं। तो माइंड बॉडी मेडिसिन एक नई साइंस उभर के आई है। डॉक्टर दीपक चोपड़ा को जो लोग पढ़ते हैं वो लोग जानते होंगे। वो एक बहुत ही पुराने फिजिशियन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस से थे, और हार्वर्ड में वो एंडोक्रिनोलॉजी, हॉर्मोन्स की साइंस में उन्होंने स्पेशलाइज किया, और आज के समय में नॉर्थ अमेरिका में वो एक बहुत बड़े एक्सपोनेंट हैं, जो कि माइंड बॉडी मेडिसिन में बहुत उन्होंने काम किया है। सो जो शारीरिक रोग हैं, जो जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं, उनका माइंड की सिचुएशन से बहुत बड़ा ताल्लुक है, और माइंड की सिचुएशन का, मेंटल हेल्थ का फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। जब हम बीमार होते हैं तो हमारा माइंड हमें, हम परेशान होते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो कई बार हम डिप्रेस्ड होते हैं। अब ये मेंटल हेल्थ और वेलबींग हमारी सफर करती है, क्योंकि हमें शारीरिक रोग या कोई दर्द है जो हमें सता रहा है, और हमें फिजिकल लिमिटेशन है कि हम वो काम नहीं कर पा रहे, बाहर जाके सैर नहीं कर पा रहे, सोशल लाइफ नहीं अपनी प्रॉपर तरीके से जी पा रहे। तो ये सारी चीजें हमारे माइंड पर इफेक्ट करती हैं। सिमिलरली, अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है, तो उसकी फिजिकल हेल्थ सफर करती है। कई बार उसको खाने का मन नहीं करता, कई बार वो खाना इतना खा जाता है क्योंकि उसको वो सेटिस्फेक्शन, अपने आप को अच्छा फील कराने की जो कोशिश है, उसकी थ्रू फूड होती है। वो सोचता है कि हाँ, मैं ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, शायद मैं अच्छा महसूस करूं। तो उसकी वजह से उसका वजन भी बढ़ सकता है, उसको कई तरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। जो कंफर्ट फूड्स होते हैं, हो सकता है वो रॉन्ग फूड्स हो, जैसे कि पिज्जाज हैं, बर्गर्स हैं, जो कि हाई इन सोडियम है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हाई इन कैलोरीज हैं, कैलोरी डेंस फूड्स हैं, जिससे ब्लड ब्लड प्रेशर के अलावा वजन बढ़ सकता है, फैटी लिवर हो सकता है। तो ये रिवर्स कनेक्शन ऑफ द मेंटल हेल्थ विद फिजिकल हेल्थ है। एम आई मेकिंग सेंस? क्या हम आगे चलें? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। This is my brief profile, but I'll skip it because I have been introduced very well. So now the first thing is that we need, this is food for body which I am talking about. The first thing is that अकेला फूड फॉर बॉडी नहीं है। जो फ्लूइड है वो माइंड के लिए भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जो ब्रेन है दैट इज मेजरली कंपोज्ड ऑफ वाटर, एंड ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच रीच आवर ब्रेन, they are communicated to the brain through water, that is through blood. So if we are dehydrated,
मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि जब हमें प्यास लगती है हम ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड होते हैं। हमारे ब्रेन को सिग्नल देना पड़ता है कि हाँ हमें प्यास लगी है और हमें कुछ पीना चाहिए, फ्लूइड। सो जब हम कोई भी एक्टिविटी में जब हम वाटर लूज करते हैं, या नॉर्मल लाइफ में भी हम वाटर लूज करते हैं थ्रू बॉवल मूवमेंट, थ्रू यूरिन एक्सक्रीशन, थ्रू स्वेटिंग, अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या आजकल समर्स हैं हम बाहर जाते हैं, इवेपोरेशन, थ्रू ब्रेथ, हमारे सांस के जरिए। आप देखेंगे अपने मोबाइल के ग्लास के ऊपर आप सांस को एक्सेल करेंगे तो इसमें कुछ वेपर्स जमेंगे। इसका मतलब यह है कि हर सांस में हम वेपर्स को एक्सेल कर रहे हैं। इसका मतलब हम पानी हमारा ब्रीदिंग के जरिए भी जा रहा है। तो बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं उनको रिप्लेनिश करना बहुत जरूरी है। इट इज रिकमेंडेड दैट वी शुड ड्रिंक 6 to 8 ounces ऑफ वाटर के जो एक ग्लास होता है आउंसेस का, उसके हम 8 से 10 ग्लासेस पिए ताकि हमारी वाटर इनटेक एक दिन में 2 से 2.5 लीटर तक हो जाए। नेक्स्ट इज फाइबर। तो डाइटरी फाइबर और रफेज जो कि इनडाइजेस्टिबल पोर्शन है हमारी बॉडी का, जिसको पचाना हमारी बॉडी नहीं जानती है। अगर वो अंदर गया है तो उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। लेकिन ये एक ब्रूम का काम करते हैं। मैं अपने पेशेंट्स को जब एग्जाम्पल देता हूँ तो मैं कहता हूँ एक झाड़ू का काम करते हैं फाइबर्स। वो हमारी आंतड़ी को, हमारी ब्लड स्ट्रीम को क्लीन करने में हमारी मदद करते हैं। और ये अनडाइजेस्टेबल होते हैं कोलेस्ट्रॉल। अब अगर हम हेल्दी बॉडी की बात करें तो हमें मालूम है कि आज के दौर में कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स हमें हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो। ये सारी की सारी समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि हम रिफाइंड फूड्स की तरफ चले गए हैं, बने बनाए खाने ज्यादा जूम कर रहे हैं। जितने भी रेडीमेड फूड्स होते हैं उनमें से फाइबर को निकाल दिया जाता है रिफाइन करते करते। तो जो होल फूड्स हैं, होल फ्रूट है, होल वेजिटेबल है, जिसमें से आपने फाइबर नहीं निकाला, जब आप फैक्ट्री मेड जूस पीते हैं तो उसमें से जो अच्छा फाइबर है वो जूस में से निकाल दिया जाता है, उस फ्रूट को स्क्वीज कर दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, और जो सारा फाइबर है उसको बाहर डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो अगर आप होल फूड, होल फ्रूट्स, होल वेजिटेबल्स, होल लेग्यूम्स, चाहे वो पीज हो, मटर हो, चाहे वो सोयाबीन्स हो, चाहे वो किसी भी तरह के बीन्स हो, या फिर होल ग्रेन्स जैसे कि बाजरी, ज्वार, रागी, ब्राउन राइस, ओट्स, होल व्हीट। तो जो रिफाइंड आटा हमें बाहर मिलता है, मैदा, उसमें से फाइबर को निकाल करके ही गेहूं में से मैदा बनाया जाता है। तो ये फाइबर रिच फूड्स को हमें अपनी बॉडी में एसिमिलेट कराना है, कंज्यूम करना है, ताकि हेल्दी बॉडी के हम मालिक रह सकें, बन सकें। इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है प्रोटीन। हर 1 किलोग्राम वजन जो आपका शरीर का है उसके पीछे 0.8 to 0.1 ग्राम ऑफ प्रोटीन की हमें पर डे रिक्वायरमेंट है। यानी कि अगर मेरा वजन 62 kgs है तो नियरली मुझे 62 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हम कैलकुलेट करें, कि प्रोटीन कैसे कैलकुलेट करना है। मैं आपको भी जब ये सेशन ओवर हो जाएगा तो मैं हमारी वेबसाइट पे लेके चलूंगा जहाँ पे हमने सारे के सारे हमारे साउथ एशियन फूड्स का डेटाबेस तैयार किया है, बहुत मेहनत लगी है। उसमें मैं एक लिंक बताऊंगा जो एक फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता है आपको हर फूड्स के हर तरह के न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन बताने में। और वो एक ऑर्डर में आपको बताता है, अगर आप कहें कि प्रोटीन कितना है वेजिटेबल्स में, लेग्यूम्स में, लेंटिल्स में, दालों में, ग्रेन्स में, देन पोल्ट्री में, चिकन फिश, चिकन में और एग्स में या मीट्स में, तो सारी चीजों के फूड ग्रुप्स अलग अलग हैं उसमें, और आपको प्रोटीन सोर्स बताएगा। इसके अलावा विटामिन भी बताएगा, मिनरल्स भी बताएगा। सो गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियंस आर मूंग की दाल या कोई भी दाल, ब्लैक ग्राम यानी कि काली दाल, चिकपी यानी कि सफेद चने, काले चने, राजमा, टोफू, स्प्राउट्स। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स भी ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स भी अच्छा सोर्स माने जाते हैं प्रोटीन्स का। विटामिन्स एंड मिनरल्स,
जो बहुत जरूरी है। एक तरह से इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है, यानी कि कम मात्रा में इनकी जरूरत होती है, लेकिन ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं हमारे बॉडी की फंक्शनिंग में, हमारे माइंड की फंक्शनिंग में। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम और पोटाशियम जब हमारी बॉडी में कम होते हैं तो हमारे माइंड के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, नर्व्स की और मसल्स की कोऑर्डिनेशन, तालमेल, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ वो एक तालमेल है। मेरे दिमाग में सोच बन रही है जिसको मैं शब्दों में ढाल रहा हूँ, तो जुबान जो कि एक मसल की बनी हुई है उन शब्दों को बना रही है। सो ये तभी सही चलेगा अगर सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड जैसे मिनरल्स का बैलेंस मेरी बॉडी मेंटेन कर पाएगी। अगर सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड इम्बैलेंस हो जाएंगे तो मुझे शायद होश भी ना रहे और मुझे शायद मेरी जुबान जो है वो लड़खड़ानी शुरू हो जाएगी। ये सिम्टम्स होते हैं। सो विटामिन्स और मिनरल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ बोन टिश्यू, इन वुंड हीलिंग, in immune system maintenance, in converting food into energy. फूड कितना भी हम कंज्यूम कर लें, लेकिन उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना ताकि हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाए। और हमारी सेल्यूलर डैमेज, जो कि सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन हर रोज हमारी हो रही है। जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारी जो सेल्यूलर प्रोडक्शन है वो इट वाज हायर देन सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन। तभी हम ग्रो होकर के एडल्टहुड हमने इख्तियार किया, हमारी बॉडी बढ़ी, हमारा वजन बढ़ा, हमारी सूझबूझ बढ़ी। लेकिन जब हम एडल्टहुड अटेन कर लेते हैं उसके बाद में हम ओल्ड होने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल एजिंग प्रोसेस। और वो बायोलॉजिकल एजिंग प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ होनी है, लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स और न्यूट्रिशन के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो चाहे वो माइंड की एजिंग हो, चाहे वो बॉडी की एजिंग हो, चाहे वो स्किन की एजिंग हो, उसको हम काफी हद तक स्लो डाउन कर सकते हैं। वो हमारे हाथ में है। तो raw foods and very lightly cooked foods are supposed to be better than overcooked foods, and now the research has proven that जो हम बारबेक्यू करते हैं समर में, नॉर्थ अमेरिका में बहुत अच्छा ट्रेंड है, उसमें कुछ परत है जो खाने की वो ओवर कुक हो जाती है और अंदर का खाना फिर भी कई बार उतनी अच्छी तरह से नहीं पकता। तो उसमें क्योंकि ऑलराउंड हीट नहीं होती बारबेक्यू में, और जो ऊपर की लेयर जो कि फायर से एक्सपोज होती है वो लेयर बर्न हो जाती है, चार हो जाती है, जिसका जिसका बुरा असर हमारी बॉडी पे होता है। जला हुआ अगर हम खाना कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी, हर जली हुई चीज हाइड्रोकार्बन बन जाती है, हाइड्रोजन और कार्बन का एक मॉलिक्यूल बन जाती है, जिसको बॉडी नहीं कभी भी पचाएगी, कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। बॉडी को उस जली हुई चीज के साथ मुकाबला करने के लिए एक खास मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसा रिसर्च बता रही है कि कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं खाने के जलने के बाद, जरूरत से ज्यादा जलने के बाद, जिसका हमें स्मोकी फ्लेवर अच्छा तो लगता है, कि वो कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर कॉजिंग होते हैं। कोशिश कीजिए लाइटली कुक्ड फूड को कंज्यूम करें, जहां तक हो सके जो खाने को हम रॉ खा सकते हैं उसको रॉ खाएं, जिस खाने को हम लाइटली पका करके खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसको लाइटली स्टीम करके या बॉईल करके खाएं। और जो खाने को बहुत ज्यादा आग की जरूरत है पकाने की, उसको थोड़ा अवॉइड करें। Then let me take you to the next slide. Okay. Now adequate calories. एक बहुत गलत ट्रेंड चल गया है वजन कम करने की होड़ में, कुछ क्रैश डाइट्स हम फॉलो करने शुरू हो गए हैं। एक प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं ऑटोफेजी। फेजी का मतलब खाना, ऑटो मीन्स अपने आप। तो जब हम जरूरत से बहुत कम कैलोरीज, जिसे हम VLCD यानी कि वेरी लो कैलोरी डाइट कहेंगे, वजन कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे कि मैं तो 16 घंटे खाली पेट रहना चाहता हूं, लेकिन आप वो सेल्फ गाइडेड अप्रोच है आपकी, जिसमें कि जितनी देर ट्रेंड है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, तो
इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान जो 8 घंटे में वो भी आप अगर अपनी जरूरत से बहुत कम खाएंगे डर के मारे कि मैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूं, तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बॉडी को लगता है कि शायद बाहर सूखा पड़ गया, फैमिन हो गया, सूखा जो पहले जमाने में पड़ता था, और बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन कर लेती है, अपनी एनर्जी को बर्न करने की स्पीड को स्लो कर लेती है। तो वो आपके लिए रेट्रो प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि बॉडी सोचती है शायद इनको खाना मिलना बंद हो गया और हमें खाना नहीं मिलेगा कल, तो वो रिस्टोरेटिव मोड में चली जाती है, ऑटोफेजी में चली जाती है, अपने आप को खाना शुरू कर देती है। तो अपने आप को खाना, अगर हमने वजन कम करना है तो अपना सिर्फ फैट को ही कंज्यूम करना था, मसल को कंज्यूम नहीं करना था। अगर हम मसल को कंज्यूम करने लगेंगे तो हमारा मसल मास कम हो जाएगा और हमें कमजोरी आ जाएगी। तो इट इज नॉट एडवाइजेबल कि हम एडिक्वेट कैलोरीज ना लें। तो ये किसी भी एक्सपर्ट को कंसल्ट करके अपना बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि आपको कितनी जरूरत है, आपकी उम्र, आपके शरीर के वजन, आपकी हेल्थ कंडीशंस, आपके हेल्थ गोल्स को मद्देनजर रखते हुए हमें एक कैलकुलेशन करनी है कि इतनी कैलोरीज की तो हमें जरूरत है। लेकिन अगर हमें वजन कम करना है तो इतना ही घाटा हम दे सकते हैं रोज का, इतना ही डेफिसिट हम दे सकते हैं रोज का। अगर उससे ज्यादा का हम डेफिसिट देंगे तो बॉडी कंफ्यूजन में जाएगी और बॉडी फिर रीबाउंड वेट गेन भी करेगी जब हम अपनी नॉर्मल डाइट पे उतरेंगे। तो यहाँ बताना ये जरूरी था कि इन्फ्लुएंस होकर के वजन कम करने के लिए, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए कहीं आप ज्यादा स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्टिव डाइट के ऊपर ना चले जाएं। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फैटी एसिड्स। ये ब्रेन के लिए और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मिनरल जरूरी है, कैलोरीज उतनी जरूरी नहीं है, लेकिन मिनरल जरूरी है और फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, या लिनोलेक एसिड उसे बोलते हैं, उसे हम ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड बोलते हैं। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स दो तरह के होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, लेकिन हमें बाहर की डाइट से ही मिलने हैं। तो जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, यानी कि जो ऐसे फैट्स हैं जो बहुत सारे जिनमें मॉलिक्यूल्स नहीं जुड़े हुए, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स ज्यादा विटामिन 6 ओमेगा 6 रिच होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए इन्फ्लेमेटरी नेचर है, जो हमारी बॉडी को लंबी देर तक कंज्यूम करने में नुकसान कर सकता है, इन्फ्लेमेशन कर सकता है, हार्ट डिजीज कर सकता है, जॉइंट स्टिफनेस कर सकता है, आर्थराइटिस कर सकता है। लेकिन ओमेगा 3 हमारे फ्रेंड्स हैं। ओमेगा 3 मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जो कि बड़े इजी टू डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन है। तो जैसे ऑलिव ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, कनोला ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, इनमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो होता है। लेकिन ऑलिव ऑयल में ज्यादा मूफा रिच ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए और हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि हमारी ब्रेन जो है वो 70% फैट का बना है। उसकी जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं वो फैट उसको जरूरी है। तो अगर हम फैट कंज्यूम करना बहुत कम कर देंगे ड्रास्टिकली, तो हमारी ब्रेन हेल्थ, हमारी नर्व हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो सफर कर सकती है। सो नेक्स्ट इज there are this is next is that I just want to thank you. This was my talk on body's health and nutrition. अब मन की खुराक भी होती है। मन की खुराक होती है जैसे हम सोशल वेलबींग, मेंटल वेलबींग को सोशल वेलबींग से, जैसे कि आप सब लोग कम्युनिटी के मेंबर्स जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को की केयर करते हैं, आप टॉपिक्स डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ों से एनरिच करना है हमने अपने मेंबर्स को, हमारी अपनी ऑडियंस को। तो ये एक तरह की केयरिंग है, एंड शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग। तो आप शेयर करते हैं, अलग अलग तरह की जानकारी, अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप केयर करते हैं एक दूसरे की। तो दिस is my number. If anybody has any questions, then these are the websites, livelifemore.com and livelifemore.ca, and my direct number. Preferably, I would suggest if anybody wants to ask any question regarding his health, then I would suggest that WhatsApp first. I keep very active on WhatsApp on this number, so I'll definitely try to reply
if we are in middle of consultations, because we do consult all across the globe on our online platforms through our own app, which is called Better Practice, Better app. So we are usually busy answering those queries and attending to our patients. But if anybody has any question, please do ping me a message on WhatsApp and I'll be very happy to help you. Thank you very much for joining today's session. So I will now go to our Zoom and stop the screen sharing, pause share. And then I think now we are on full screen. Is it stopped now? No, we can No. still see the screen. The last slide, we can see the thank you slide. Okay, I'm stop. How to disable? Stop sharing. Stop sharing. Resume sharing. It says resume share and to pause sharing. Anyways, I'll figure out. In the meantime, if you have any questions, I would love to answer the questions. जी Kavaljeet ji has a question. जी Kavaljeet, आप बोलिए. Thank you. It was really a wonderful talk. लेकिन मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने शुरू में बताया कि जो डॉक्टरी है इसमें आजकल ये फैशन चल रहा है, फैशन नहीं जनरली मैं प्रैक्टिस कहूंगी कि चल रही है कि देयर इज एलोपैथी, नेचुरोपैथी, देन आयुर्वेदिक, कई सारी जो साइंसेज हैं आपने सबको मिला के आजकल चल रही हैं और एक ट्रेंड बन रहा है कि आप एलोपैथी पे नहीं डिपेंड कर सकते प्योरली या फिर आयुर्वेदिक पे नहीं डिपेंड कर सकते और ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप नेचुरोपैथी की तरफ ज्यादा जाएं और जिसका झुकाव ज्यादा दैट इज मोर नियर टू द आयुर्वेदिक मेथड्स एंड ट्रेंड्स इंक्लूडिंग द फूड आइटम्स। तो हमें क्या करना चाहिए कि क्योंकि जो कुछ एलोपैथी वाले बताते हैं वो कई बार ऐसा होता है कि आयुर्वेदिक वाले बिल्कुल नेगेट कर देते हैं और जो नेचुरोपैथी वाले हैं वो तो बिल्कुल ही एलोपैथी के ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ कि अगेंस्ट ही जाएंगे कि क्योंकि एलोपैथी इज बेस्ड ऑन द केमिकल्स। जो भी कोई टेस्ट करने हैं जैसे आपको कैंसर कह लो या कोई भी बीमारी है तो वो केमिकल वो आपके शरीर में डालते हैं, लेकिन नेचुरोपैथी का जो आजकल ट्रेंड चल रहा है वो कहते हैं कि नहीं ये केमिकल्स के बिल्कुल दूर रहना है, आपको नेचुरल वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ बिहेवियर सारा कुछ करना चाहिए। तो एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि विच पैथी शुड वी अडॉप्ट। सेकेंडली पर्टिनेंट क्वेश्चन, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन। मैं ये क्योंकि ज्यादा ये भी थोड़ा मैं इसके नजदीक हूँ क्योंकि हमारे घर में मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो अभी उनके वो इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर अमर सिंह आजाद। वो भी पहले वो मेडिसिन के डॉक्टर थे लेकिन अब वो नेचुरोपैथी को बहुत प्रोपेगेट कर रहे थे, उन्होंने अडॉप्ट भी किया। वो मिल्टन जो मिलेट्स हैं वो वाला फूड बता रहे थे, है ना। तो लेकिन वो भी उनको ऐसी एक भयानक ऐसी बीमारी हो गई कैंसर वाली कि ब्लड शुगर हुआ, विद इन 8 months ही लेफ्ट अस। तो अपने जीवन में अडॉप्ट करने के बावजूद भी वो इतने बड़े डॉक्टर मेडिसिन के थे जो वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाता है। तो मैं आई रियली वांट टू नो दिस। अजर अमर डॉक्टर कोई अमर नहीं है, कोई नहीं है। डॉक्टर अमर, I have a lot of regard for any of my seniors who have done service to the mankind by learning first। पहले सीखा और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया। अजर अमर कोई भी नहीं है, राइट। हम सब लोगों ने एक टाइम पर चले जाना है इस दुनिया से और बॉडी में एजिंग होनी है। लेकिन जो आपका सवाल पहला था वो इंटेग्रेटिव मेडिसिन के ऊपर था। इंटेग्रेटिव मेडिसिन इज अ बेटर थेरेपी
बिकॉज उसमें आपके जो डॉक्टर्स हैं उनकी अप्रोच होती है एक बैलेंस्ड अप्रोच कि कौन सी स्टेज पे कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है और आपके लिए भली रहेगी, राइट। उनके लिए ये जरूरी नहीं होता कि मैंने ये पढ़ाई करी है तो यही सुप्रीम है, कि मैंने नेचुरोपैथी पढ़ी है तो मैं केमिकल दवाई को हटा ही दूं, नहीं। उनको अपना काम करना है कि कैसे नेचुरल थेरेपी के असर की इंतजार करनी है, क्योंकि उसको देर लगनी है असर दिखाने में। तब तक तो केमिकल मेडिसिन का सहारा तो है ना, डिटीरियोरेशन तो नहीं हो रही। सो साइंस ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, हम साइंस का ही इस्तेमाल करके, आज मेरे सामने लाइट जल रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी के जरिए, मैं बैठा वैंकूवर में हूँ, टोरंटो में है। जब हमने यहाँ पर साइंस को अपना लिया अपनी कन्वीनियंस के लिए, तो क्या हम अपने किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, छुपे हुए इंटरेस्ट के लिए किसी चीज को कैसे नकार दें? क्या वो सही रहेगा कि मॉडर्न मेडिसिन तो केमिकल ही है, ये तो आपका नुकसान करेगी? मेडिसिन, मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ इंटेग्रेटिव मेडिसिन, उसमें हर तरह की मेडिकेशन होती थी, लेकिन अफसोस की बात है कि आज के समय में डॉक्टर्स जो हमारे को प्रोफेशनल्स हैं उनके पास उतना समय नहीं है, क्योंकि गैप है बिटवीन द नंबर ऑफ द डॉक्टर्स वी हैव एंड द एलिमेंट्स वी हैव, जो बीमारियां इंसान को हो गई। तो मजबूरन 2 दवाइयां, 3 दवाइयां, 4 दवाइयां लिखनी पड़ती हैं जो कि केमिकल की बनी होती हैं। लेकिन एक बहुत ही अच्छी सेइंग थी दैट द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल emphasize on a holistic advice of changing your lifestyle, of changing your diet, not only write medications, कि कुछ कागज के टुकड़ों के ऊपर कुछ दवाइयां लिखना ही डॉक्टरी नहीं है। दैट इज जस्ट स्टॉप गैप अरेंजमेंट। स्टॉप गैप अरेंजमेंट का मतलब है कि एक लीकेज चल रही है, हमने वहां पर एक ग्लू लगा दिया या टेप लगा दिया और सोचा कि वो लीकेज खत्म नहीं हुई, वो लीकेज वही है, हमने सिर्फ वो नजर ना आए लीकेज, उसको टेम्परेरी रोकथाम की है। तो जो रूट कॉज को समझना है वो इंटेग्रेटिव मेडिसिन है, कि क्यों बढ़ा है ब्लड प्रेशर, ना कि ब्लड प्रेशर की दवाई सीधी लगा दी। हो सकता है ब्लड प्रेशर स्ट्रेस की वजह से हो, तो उसमें हम आज सोल की बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो जब परेशानी कम होगी तो ब्लड प्रेशर भी तो कम होगा। सो वी नीड टू integrate, we need to see what fits where to whom. So it is very much highly customized approach which needs to be followed, और यही integrative medicine, जिसमें एक पेशेंट की हिस्ट्री होनी चाहिए, उसकी फैमिली हिस्ट्री होनी चाहिए, उसकी हेल्थ हिस्ट्री होनी चाहिए कि उनको क्या क्या तकलीफें कब कब आई, उनके पेरेंट्स को क्या क्या थी, उनके सिबलिंग्स यानी कि ब्रदर सिस्टर को क्या क्या है, अगर कैंसर फैमिली में है तो जीन्स में भी होगा। अब हम आगे चलें और देखें कि इस पेशेंट में जिसके ब्रदर को कैंसर हुआ, जिसके ब्रदर को डायबिटीज हुई, अब इस पेशेंट में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जेनेटिकली जो कोडिंग है बॉडी की वो सेम है, इन्फ्लुएंस, पेरेंटल इन्फ्लुएंस सेम आ रहा है, एक बहन और एक भाई यानी कि सिबलिंग्स। तो हम क्या करें कि क्या इस पेशेंट में कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर पैदा करने वाली चीजों के रिस्क फैक्टर ज्यादा हैं? क्या ये पेशेंट स्मोकर है? क्या ये पेशेंट बहुत ज्यादा केमिकल फूड्स कंज्यूम करता है? क्या ये पेशेंट बहुत ज्यादा बारबेक्यू करता है? क्या ये पेशेंट फिजिकली एक्टिव है? क्या ये पेशेंट टाइम टाइम पर अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है? क्या इसका लाइफस्टाइल वैसा है ये डिटॉक्स करे? क्या इसकी डाइट हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स है? इसकी वेजिटेबल और फ्रूट्स की इंटेक कितनी है? फिर होलिस्टिक अगर इवैल्यूएशन करनी है तो ये भी देखना है कि डायबिटीज फैमिली में आ गई थी तो इस पेशेंट को डायबिटीज होने का अंदेशा है। इसकी HbA1c वैल्यू, ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन जिसे हम बोलते हैं, जो कि हमें बताती है एवरेज शुगर लेवल ऑफ 3 मंथ्स, वो कितनी है? क्या ये पेशेंट भी हमारा जा रहा है टुवर्ड्स प्री डायबिटीज और डायबिटीज इन द नियर फ्यूचर? तो हमने उसको भी बचाना है।
क्या इस पेशेंट की बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक है? क्या ये शुगर्स और मीठे को ज्यादा पसंद करता है? और फिर आयुर्वेदा के अनुसार, बहुत ही बड़ी साइंस है आयुर्वेदा, बहुत वास्ट है, क्या इस बॉडी की, इस पेशेंट की प्रकृति क्या है? इसकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है, इसकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, इसका अपना बेली फैट ज्यादा है, बढ़ा हुआ है, तो इसकी प्रकृति क्या है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वाता है, यानी कि बाय वाली चीजें के गुण इसके अंदर हैं, इसको बॉडी में पेन होती है, स्टिफनेस होती है, वजन कम हो रहा है, या कफा है, यानी कि वजन बढ़ रहा है और सुस्ती रहती है सारा दिन, एक्टिवनेस नहीं रहती, लेथार्जी रहती है, या पित्ता है, यानी कि गर्मी बढ़ रही है शरीर में, एसिडिटी बढ़ रही है, यहाँ पे जलन हो रही है, या शरीर से सेक निकलता है, उसको हम बोलते हैं पित्त प्रकृति। तो क्या ये दोष सम दोष है, ये बैलेंस में है, कि ये दोष अपना बैलेंस छोड़ रहे हैं? तो यही इंटेग्रेटिव अप्रोच है जिसमें हम होलिस्टिक, बड़ी डीप इवैल्यूएशन, असेसमेंट करके एक डाइट और लाइफस्टाइल पैटर्न बता सकें और दवाइयों में एक बैलेंस बना सकें, ताकि कम से कम ड्रग लोड हो। एम क्या है? एम, जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन में पूछा, डॉक्टर अमर सिंह के बारे में जिक्र किया, सारे फिजिशियंस और हीलर्स जो भी किसी भी तरह की थेरेपी के हैं, उनका एम ये होना चाहिए, और है, मेरा बहुत है, कि लाइफ स्पैन को एनहेंस कर पाए और हेल्थ स्पैन को एनहेंस कर पाए। समझिए, ये बात बहुत ही अच्छी है, वजनदार है, कि लाइफ स्पैन यानी कि अच्छा जीना है, और हेल्थ स्पैन यानी कि हेल्दीली जीना है। नंबर ऑफ इयर्स of life with vibrant health in hand, rather than somebody living a long life but having to spend 5 years of terminal life because of terminal illness on the bed. That is no quality of life. So quantity as well as quality. That is why I named my venture, my foundation, my organization Live Life More. It is not live life long, it is more. So we can instill more value into it by doing all those things which are good, which are customized according to you. I hope I answer your question. Thank you. Anything else? So, Dr. Sandeep, I have a question. जी, आप जो ये इंडिविजुअल अप्रोच के लिए आप कह रहे हैं कि आपका एक एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है? वेब एप्लीकेशन भी है जी, हमारी वेबसाइट पे अगर आप जाएं livelifemore.com, या मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ, वो न्यूट्रिशन की हमने बात करी थी, अगर मैं दोबारा से शेयर करूँ स्क्रीन अपनी। जी, जस्ट अ सेकंड, आई हैव टू। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि अगर हमें ये जानना है कि डिटॉक्स कैसे करना है, और या फिर हमारी बॉडी के लिए कितनी कैलोरीज इंपॉर्टेंट है, जी, तो देखिए, फिर हमें ये इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहिए, और या फिर ये एप्लीकेशन के थ्रू? मैम, ये हाउ ऑटोमेटेड कैलकुलेटर्स होते हैं कई सारे, जी जो कि आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। जी एक हमारी होती है एक्टिविटी, अभी स्क्रीन शेयर हो गई? जी, स्क्रीन No. शेयर हो गई है। आप नहीं, अभी स्टार्ट कर अभी नहीं शेयर हुई। अभी ये नजर आ रहा है आपको? I've made Nothing. you host, Dr. Sandeep, so you can share now. Yes. आप देख पा रहे हैं ये अभी नहीं। हमारी हाँ, अभी आ हमारी गया। No, जी, just really bad. हमारी ये वेबसाइट है livelifemore.com, right? But it's not written anywhere. हाँ, It's on the top. on the top, ये लिव लाइफ मोर का लोगो है। सो यहाँ पे ऊपर जाएंगे राइट साइड पे, Yeah. On green part, slip. हाँ जी, ऊपर टॉप मेन्यू पर जाएंगे तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑफ इंडियन फूड्स, हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सब खाने एक तरह के, क्योंकि हमारी जो ओरिजिन है वो एक ही है, रेस एक ही है, राइट? तो यहाँ पे आप जाएंगे
देखिए इंडियन फूड न्यूट्रिशन चार्ट्स फॉर ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यहाँ पे मेन्यू पे सेलेक्ट करेंगे तो मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, प्रोटीन, राइट, और सेलेक्ट अ फूड क्लास। उस फूड में अगर मैं ऑल लिखता हूँ तो सारे तरह के फूड्स आ जाएंगे। अगर मैं इसको सेग्रीगेट करना चाहूँ कि मुझे बताए कि कौन से मिल्क प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा प्रोटीन है, तो मैं मिल्क प्रोडक्ट करूंगा। नट्स में कितना प्रोटीन है, पल्सेस में कितना है, रूट्स में कितना है, जो जमीन के नीचे से हम जैसे वेजिटेबल्स हैं जो रूट्स के रूप में हमें मिलते हैं, रेडिश, कटहल, टर्निप। हाँ जी हाँ जी, sugars, vegetables, fruits, fish and other seafoods, fats and edible oil, ये सारे तरह के फूड क्लासेस हैं। या फिर हम सारों को ही एक देख लें कि प्रोटीन किस में ज्यादा है, राइट। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स करते हैं, गेट न्यूट्रिशन चार्ट प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे आ गया। ये 100 ग्राम्स के लिए है, यहाँ पे लिखा आ रहा है 100 ग्राम्स। तो हर 100 ग्राम इस खाने का, जैसे कि स्किम्ड मिल्क पाउडर है काउज मिल्क का, उसमें 38 ग्राम्स प्रोटीन है 100 में, यानी कि उसमें 38% प्रोटीन हो गया, राइट। होल मिल्क पाउडर जो स्किम्ड में था उसमें ज्यादा था, होल मिल्क पाउडर में 25.8 हो गया। चीज में 24% प्रोटीन है, राइट। खोआ, तो ऐसे करके कई सारी चीजें हैं। ऐसे आप इस न्यूट्रिशन चार्ट को आप रेफर कर सकते हैं। अगर कोई भी आपकी, अब कार्बोहाइड्रेट की बात होती है आजकल कि भाई कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मत खाइए, डायबिटीज वालों को बहुत जरूरी है कि वो रिस्ट्रिक्ट करें। तो आप देखें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किसमें है, केन शुगर, जैगरी, जैगरी यानी कि गुड़, राइट। देन यू विल फील, देखिए उसमें जैगरी में 95% था, ये मिस्टेक है, 95% होता है, 99%, राइट। तो डॉक्टर साहब ये गुड़ खाना अच्छी बात है या नहीं? इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है। अगर किसी को डायबिटीज है, अगर किसी को बेली फैट है, अगर कोई वजन कम रखना चाहता है या कम करना चाहता है, तो उसको चीनी किसी भी रूप में, गुड़ जो है वो भी गन्ने का बना है, केन शुगर का, और चीनी भी गन्ने की बनी है, केन शुगर की। तो दोनों जो है वो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट रखने वाले फूड्स हैं। एटलीस्ट मैं तो नहीं खाता गुड़, शक्कर, चीनी। मुझे लगता है कि मैं पूरे महीने में 1 या 2 चम्मच किसी रूप में लेता हूँ। और मैं एंटी एजिंग मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ, एंड सो आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच, राइट। तो एंटी एजिंग मेडिसिन यानी कि जिसमें हमारी उम्र उतनी तेजी से ना बढ़े जितनी तेजी से कैलेंडर बढ़ा रहा है हमारी उम्र। कैलेंडर में हर रोज 1 दिन हम पुराने हो रहे हैं, हर अपने जन्मदिन पर 1 साल से पुराने हो रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी में उसको एक्सेलरेटेड एजिंग का शिकार नहीं होने देना, बायोलॉजिकल एजिंग, उसको स्लो डाउन करना है। तो स्लो डाउन करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट है एज, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। तो हमारी बॉडी में जो भी चीज हम कंज्यूम करते हैं वो सारी की सारी चीज अल्टीमेटली ग्लूकोज बनती है, और उससे बनते हैं एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। एज, एज मतलब कि जितने ज्यादा एज होंगे हमारे अंदर उतनी हमारी एजिंग होगी। और अगर हम आसानी से, जी नरेंद्र कलसी जी सत श्री अकाल, हाँ जी सत श्री अकाल। मेरा क्वेश्चन है, आपने कहा कि एंटी एजिंग में मेडिसिन लेता हूँ, वो कौन सी होती है? एंटी एजिंग मेडिसिन नहीं लेता हूँ, एंटी एजिंग न्यूट्रिशन मैं न्यूट्रिशन, ढूंढता हूँ व्हाट अपने इज खुराक दैट? में। दैट इज लेस कार्बोहाइड्रेट, लेस रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अच्छा है लेना। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि फाइबर में बंधा हुआ है और ट्रैप्ड है। फाइबर में कौन सा बड़ा बंधा हुआ कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि सब्जियों में फाइबर है बहुत सारा, घिया, तोरी, टिंडा, कद्दू, या आप कह लें स्पिनच यानी कि पालक, लीफी वेजिटेबल्स यानी कि लेटसेस, केल, इन सब में क्या है, बहुत सारा पानी है, बहुत सारा फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट भी है,
लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि उस कार्बोहाइड्रेट को निकालने के लिए, उस शुगर को निकालने के लिए उनमें से बॉडी को चर्निंग करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी बचाने के लिए। ठीक है, तो जो कैलोरी डेंसिटी है, जो कार्बोहाइड्रेट डेंसिटी है, घनापन है, वो कम हो जाता है, राइट। तो इस वजह से एंटी एजिंग जो न्यूट्रिशन है उसमें हमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बचना है, चीनी गुड़ से, जो कि बड़ी जल्दी शुगर को अंदर जाके रिलीज करे। ठीक है, यस अच्छा मैं तो बहुत खाता ही भी मेरे पर बढ़िया जी डॉक्टर साहब मेरा भी यही क्वेश्चन है ਮਦਨ ਜੀ ਇਸੇ ਕਿ- ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਹੈ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਂਡ ਹੈਲਡ ਅਪਰੋਚ। ਹੈਂਡ ਹੈਲਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਐਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, राइट। नहीं, खाने के बाद थोड़ा सा ले लो गुड़, तो वो नुकसान तो नहीं करता। ले लो, एक फ्रूट का पीस ले लो, छोटा सा पीस ले लो, एक एप्पल का फ्रूट का पीस ले लो, दैट इज बेटर। क्यों? क्योंकि गुड़ है, गुड़ ने चीनी यहीं पर छोड़ देनी है, मुंह में, जुबान में। लेकिन एप्पल में से चीनी को निकालने के लिए, ग्लूकोज को और शुगर को निकालने के लिए आपकी बॉडी को मेहनत करनी पड़नी है, और उसमें स्लो रिलीज होना है। या थैंक यू। जी मतलब पहले ज्ञानी जी ने भी एक दफा हाथ खड़ा किया था। ज्ञानी जी आपका क्वेश्चन है अभी? हाँ जी, हमने और एक तो participants ये सवाल है, सवाल नहीं है हमारा, वो जो वेबसाइट है ना, हमको पता ही लगा, तो चैट पर लिख देना। हाँ जी, मैं चैट पर लिख देता हूँ। हाँ जी, तो दूसरा जो गुड़ 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 की बात चली सो ਗੁੜ ਖੰਡ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਬੋਡੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਮਝਾਓਗਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬੋਡੀ ਹਰ ਖਾਣੇ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਕੜਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿੱਠਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਜੀ। ਹਰ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਗਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਖਾਣੇ 'ਚ, ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ, ਗੁੜ 'ਚ। ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਫਲੱਡ, ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਦਾ ਫਲੱਡ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਸੋ ਬੋਡੀ ਵਿਲ ਗੋ ਇਨਟੂ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਹੋਮਿਓਸਟੈਸਿਸ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ to get that absorbed into the cells of the body, ਜੀ, right? So ਉਹ cells ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ that is a bad situation, because ਉਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਫਾਈਨਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ। So this is what we have to take care of. I hope I answered your question well. जी डॉक्टर साहब, मेरा भी क्वेश्चन बारे में सिमिलर ही है ज्ञानी जी के नाल। मैं शुगर तो ऑलमोस्ट नेगलीजिबल है जी, ऐसे ऑलमोस्ट नेगलीजिबल, कि बाहर होमा तो मैं खालमा या पालमा नहीं तो नहीं, लेकिन
गुड़ मैं काफी खाना है और नाल डेट्स है खजूरा है वो भी खाना है सेम हियर। और ये कहंदे भी है कि खजूर खानी अच्छी है गुड़ शुगर नालों अच्छा है मैं हर चीज दे विच चाह च भी दुध विच भी ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਵੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਖਾ ਲਓ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚੀਨੀ ਖਾਣਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਨ ਆਫ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਫੂਡਸ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੈਲੋਰਿਕ ਫੂਡਸ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੈਟ ਸੈੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ belly fat बढ़ता है belly fat is in itself a risk for creating diabetes right causative factor for diabetes so all these things are cofactors for creating a regimen or you can say a recipe for diabetes it doesn't mean कि तुसी diabetes ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ diabetes ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਥੋਜੈਨੇਸਿਸ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਥੋਜੈਨੇਸਿਸ ਪੈਥੋ ਮੀਨਸ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੈਨੇਸਿਸ ਮੀਨਸ ਉਹ ਬਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਜ਼ੇਟਿਵ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਏਟੀਓਲੋਜੀ ਮੀਨਸ origin ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਟੀਓਲੋਜੀ ਦੇਖਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਜੜ ਪਕੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ना कि सिर्फ ऊपरों बैंडेड लगा के एक टेम्पररी रिलीफ देना सो इंटेग्रेटिव मेडिसिन होलिस्टिक हेल्थ केयर इज अबाउट कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स एंड कस्टमाइजिंग योर सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट राइट डॉक्टर साहब मैं थोड़ी गल नूं बड़ी रीइंफोर्स करना चाहूंगा जो पहला शुरू जो कही सी बॉडी एंड माइंड ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਤੁਰਨਾ ਜਾਂ जॉब करना डिफिकल्ट से लेकिन 2-3 दिन तो मेरे मन च आया किसी एक होर बंदे नूं देख के वो जॉब कर रहा हौली हौली और मैं स्टेप लेना शुरू करता हुण मैं तकरीबन ज्यादा तो नहीं आधा किलोमीटर तक दौड़ लेना है जॉब कर लेना है वो सिर्फ यही कि तुसी गल कही है कि बॉडी एंड माइंड मैं अपने आप नूं कहा कि जे एक बुजुर्ग मेरे कोल जांदा कर सकदा तो मैं क्यों नहीं कर सकदा The only thing is that we have to do everything according to our physical capacity and gradually build that. It is not that कि ਅਸੀਂ जोश खाइए और साडा cardiac clearance साडे कोल है नहीं गी ਅਸੀਂ treadmill test कदी कराया नहीं और ਅਸੀਂ अपनी capacity ਤੋਂ ज़्यादा because मेरी post graduation preventive medicine सीगी मैं चाहना कि बीमारी होवे ना और promotive health care ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ यानी कि मेरी specialization ने ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ कि ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਹਦੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇੱਕ ECG ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਟੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇਨ ਦ ਲੈਬ ਇਨ ਹਿਸ ਕਲੀਨਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ECG ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਨਕਲਾਈਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਪ ਹਿਲ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਚੜਾਈ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮਸਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਡ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕੈਨਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖੂਬ ਸਾਰੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਦੌੜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। So it is always better to consult your cardiologist and to get yourself a clearance that you are good to go, and then indulge in any physically challenging thing all of a sudden. It is better to slowly progress and condition your body and cardiovascular system. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਐਂਡਿਓਰੈਂਸ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। It is never too late to start working on your health. It is never too late. ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, it is never too late. Because everything contributes positively. Right? बिल्कुल जी। I think it is motivating enough. It is. जी, शाजिया ने भी हाथ खड़ा किया हुआ। जी शाजिया, आपका क्या क्वेश्चन है? मॉनिटरिंग वुमेन काउंसिल के नाम से मैम आपका नाम मुझे नहीं पता लग रहा, लेकिन आप कंडक्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपकी प्रोनाउंसिएशन। थैंक यू सो मच। नाम सोबिया है। सोबिया। अच्छा जी, जस्ट लाइक सोफिया बट विद अ बी। हाँ जी, सोबिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। Can you hear me? वाह, थैंक यू जी, थैंक यू। शाजिया जी कहाँ हैं? Can you hear me? Yes, Shazia, we can hear you. Okay. So I have a couple of questions. Like my weight has decreased 9 pounds, and I take Synth. So she's saying do blood tests, maybe because of thyroid, and but I don't eat much. Like I don't eat much meat. So how can I increase my weight? Like I don't want to lose my muscles. And again, like she put me on 1% milk and 0% yogurt. Maybe that's why. So I want to know, like she scared me that you will get cholesterol if you drink regular milk or regular yogurt. And also, is honey good, organic honey? I don't take sugar. I take organic honey in my tea only. When we lose weight. Pardon me? When we lose weight without any reason, there has to be a pathogenesis. Patho means उस तकलीफ का कोई तो root cause होगा. Your doctor was right in pointing out कि कहीं thyroid ज्यादा काम करना शुरू हो जाए तो हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, लेकिन हमारी फूड इनटेक उतनी ही है, तो क्या होगा, एक नेगेटिव कैलोरी बैलेंस बन जाएगा। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस मींस हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, जरूरतें बढ़ गई, लेकिन हमारी बॉडी की जो डाइट है वो सेम रही। तो उस वजह से हम ऑटोफेजी में चला जाएंगे, यानी कि हमारी बॉडी अपने ही टिश्यू को खाना शुरू कर देगी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि जरूरतें बढ़ गई। तो इसी तरह अगर कोई मेंटल स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, उसमें हमारा माइंड बहुत ज्यादा काम करता है। थॉट प्रोसेस में भी एक एनर्जी लगती है और हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो हमारा एपिटाइट डिप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम कम खाना खाएंगे। जब हम कम खाना खाएंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा माइंड कहीं और चल रहा है, स्ट्रेस है, उसको परेशानी है, हम सोच ही नहीं रहे खाने के बारे में उतना। हो सकता है हमारी फूड इनटेक कम हो गई हो सकता है कोई प्रॉब्लम अंदर चल रही हो जो कि हाइपर मेटाबॉलिक हो। हाइपर मीन्स ज्यादा, मेटाबॉलिक यानी कि जरूरत से ज्यादा कोई टिश्यू काम कर रहा है। कई बार कैंसर्स में कैंसर ग्रोथ अगर चल रही हो अंदर, तो उसमें भी अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है। और कई और बीमारियां होती हैं जो कि हाइपर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को डिपिक्ट करती हैं, जैसे कि आप कोई इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, टीबी में वजन कम होता है लोगों का, क्रॉनिक इन्फेक्शन, क्रॉनिक यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन,
जो कि लेडीज को बहुत कॉमन है, उसमें भी वजन कम हो सकता है अगर बहुत देर तक चल रही है। तो ऐसे कई सारे रीजंस हैं। आप अपने डॉक्टर को मिलिए, वो एनालाइज करवाइए, अपना ब्लड वर्क कराइए, और ईटिंग पैटर्न में कैलोरी डेंसिटी फूड्स, हाई कैलोरी डेंसिटी फूड्स को कंज्यूम करें। जैसे डेट्स है, अंजीर है, अंजीर very high in calorie, high in nutrition, selenium, magnesium, right? So they are dense in calories, right? Kishmish, munakka, right? So then dry fruits, all these dry fruits, they are very high calorie. 100 ग्राम में नियरली 400-450 कैलोरीज होती हैं, काजू, बादाम, अखरोट, वॉलनट में। सो आप नट्स यूज करें, ये कैलोरी डेंस फूड्स हैं, इनमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट कम है, लेकिन कैलोरी डेंस है। तो आप कैलोरीज इंटेक बढ़ाएं, और अगर आपका वजन स्टेबलाइज हो जाए, अगर कोई और अंडरलाइंग रूट कॉज या पैथोलॉजी या बीमारी नहीं है, तो आपकी फुल बॉडी स्क्रीनिंग होनी जरूरी है, ब्लड वर्क होना जरूरी है, एक होलिस्टिक हेल्थ कंसल्टेशन होना जरूरी है, और फिर कस्टमाइज्ड तरीके से आपकी न्यूट्रिशन प्लान होनी चाहिए कि कितना प्रोटीन देना है, कितना फैट देना है आपको, और कितनी कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज देनी। This is a solution. I So, hope I answered your I question. want to go. so अच्छा जी, same नरेंद्र use जी। करूँ, milk same use करूँ 1% हाँ, and 0% मिल्क, yogurt? हाँ, नो वरीज, नो वरीज। उसमें अगर आप वजन कम हो रहा है आपका, तो आप ज्यादा यूज करें। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो देख लेंगे। अभी तो आपको ज्यादा कैलोरीज की जरूरत है, और कैलोरीज में तो फैट ही होता है ना, फैट में तो कैलोरीज ही होती है ना। तो डेट्स मैं 3 डेट्स खाती हूँ रोज सुबह, और हाँ, खाऊं? Yeah, I बिल्कुल like खा dates. सकते हैं। हाँ, Yeah. वेरी गुड, यू कैन। But इंजीर I don't eat because is ये गर्म होती है ना, अभी गर्मी है करके मैं पिंपल एक नहीं हो जाता। तो आप भिगो के रखें उसको रात को, तो उसकी Oh. गर्मी काफी हद तक कम हो जाती है। सोक कर दें रात And also आप बोल ड्राई रहे थे फ्रूट्स को। अभी you know I have wisdom tooth infection right now. I'm in on antibiotic for a week. हाँ जी, I don't know if wisdom you tooth extraction, okay. yeah. No worries, no worries, no worries. What about So honey? Is organic honey is good? honey is much better than good, much better than sugar, because honey is actually high calorie dense food, but it is sweet in taste, and it has got minerals in it, right? So you can have it. And what about tea, coffee, like green tea, one time green tea, one time black tea? Very good. Yeah. Very good. Yeah, yeah. Carry on. Okay. Thank you. Yeah. Anything else? Anybody else has a question? किसी और का कोई क्वेश्चन है तो डॉक्टर संदीप जसल इज अवेलेबल राइट नाउ। Free consultation. We are always looking forward to a free मैं हाँ जी। डॉक्टर संदीप, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। इन जनरल there are causal relationship, that is one is cause and the other is effect. Yeah, cause and effect. तो डॉक्टर्स तो कहते हैं कि क्योंकि ये हुआ इस करके ये प्रॉब्लम आ गई, है ना। और जनरली ये होता है कि वी आर ऑल अवेयर ऑफ, जो कह लो कि एजुकेटेड पर्सन है हमारे कैटेगरी में जो आते हैं, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, उनको कह सकते हो कि आप अवेयर हो के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फ्लूइड है, फाइबर है, प्रोटीन है, मिनरल, सारा कुछ ये वो आप ले रहे हो, तो हेल्थ कॉन्शियस भी हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इवन देन यू आर सफरिंग फ्रॉम सम एलिमेंट, वो एलिमेंट का आपका खुद का कारण नहीं होता, लेकिन वो जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, समटाइम्स दैट इज हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, और उसकी वजह से जैसे आपने शुरू में ही कहा है कि माइंड, बॉडी एंड मेडिसिन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो बॉडी को तो डॉक्टर्स ने देख लिया, लेकिन जो माइंड है दैट इज अफेक्टेड बाय
the surrounding environment. When that environment is not so much congenial and it is causing a negative effect on your body, then आप जो एक तो यह है कि उससे कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, और जो ये कह लो कि आयुर्वेदिक वाले या कुछ जो कहते हैं कि ऐसे करो, वो कहेंगे ध्यान लगाओ, समाधि करो, पाठ पूजा करो, तो ध्यान को उस तरफ लगाओ, ठीक हो जाएगा। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, स्पेसिफिकली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द साउथ एशियन कंट्रीज, तो उसमें तो ऐसा है कि डॉक्टर्स दे आर इंडल्जिंग इन द प्राइवेट प्रैक्टिस, and whenever we are talking about the private practice, then whenever the word private comes, then the concept of maximization of profit will naturally come. They won't go into the finding the cause of that ailment. बस उनको आप बताओगे कि बीपी है, गोली लगा देंगे, हार्ट अटैक क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम है, वो गोली लगा देंगे, है ना, तो राइट कॉज पे नहीं जाएंगे। तो इसको कैसे एज एन अवेयर सिटीजन, तो इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं कि एक तरफ तो प्राइवेट प्रैक्टिस वाले हैं, एक है होलिस्टिक अप्रोच अपनाने वाले आप जैसे जेन्युइन डॉक्टर्स हैं, तो इसका मैच सराउंडिंग में कैसे किया जाए? सब चीजों की और सब इंडिविजुअल्स की, सब फैसिलिटीज की अपनी एक जगह है आपकी लाइफ में, और आपको सूझबूझ, प्रूडेंस, विजडम खुद है, अच्छा है, सेल्फ अवेयरनेस है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आई एम सो वेरी ग्लैड दैट यू आर दैट अवेयर। और आपकी जो सेंस ऑफ ओनरशिप, ओनस ऑफ योर ओन बॉडी इज द मैक्सिमम, बिकॉज अगर सफर करना है वो भी हमने ही करना है, अगर अच्छी हेल्थ के बेनिफिट्स लेने हैं वो भी हमने ही लेने हैं, तो सबसे ज्यादा हेडेक लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ही बनती है। If I suffer from a pain, you can only empathize or sympathize, right? Hi, I feel bad that you are in pain, right? But that pain has to be borne by me. So I have to put that effort for my own self. Yeah. I have to take the responsibility of my own health. But there are certain facilities which are being offered by my healthcare system, which I need to optimally utilize. But nobody can force a tablet upon me if I am aware enough myself. Agar main aware, right? Nobody can push a tablet into my mouth. I can consult, I can get investigated, I can still do a lot about reducing the drug load upon my body. But there are certain situations where you have to resort to all these things. And there is no harm, because the purpose of every health professional is to enhance the, ideally, Hippocratic oath तो सबने लिया ना healthcare professionals ने, कि मैं मानवता की सेवा, अपने इंटरेस्ट को पीछे रख के पहले मानवता की सेवा करूंगा, मैं अपने पेशेंट की हीलिंग के लिए करूंगा, राइट? पेशेंट ने आपको फी दे दी है आपका टाइम लेने के लिए, क्योंकि सबके पास जिंदगी में उतना ही समय है, सबके पास 24 घंटे एक दिन में है, सबने 8 घंटे सोना है, 3-4 घंटे फैमिली के साथ स्पेंड करने हैं, फिर बाकी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन, वो उनकी आजीविका है। आजीविका मतलब के लाइवलीहुड, राइट? कोशिश रहती है, टेंडेंसी होती है कि हम ऑप्टिमाइज करें उसको, कम से कम समय में ज्यादा पैसे आ जाएं, राइट? रहती है कोशिश। लेकिन अगर आप अपने सामने वाले को उसके शूज में पांव डाल के देखें कि उसको कहाँ चुभ रहा है, तो आप बेटर ह्यूमन बीइंग, बेटर हीलर बन सकते हैं। सोचता हूँ ये अच्छा जवाब है, राइट? इजाजत उस्मा जी, कोई और सवाल? जी ज्ञानी जी, आपने भी हाथ खड़ा किया हुआ है। It's your नजर turn. मुझे नहीं आ रहे अभी तक, मुझे लग रहा था कि बाकी लोग चले गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक सेकंड, सो भी आपने पिन किया हुआ है इन्हें?
जी तो ऐसे कह दीजिए ताकि सब एक ठीक दूसरे है, को देख अब सकें। मुझे नजर आ गई। जी हाँ। यानी जी दसो। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਡਾਇਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗਲਤ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2, ਫਿਰ 3, ਫਿਰ 4, ਫਿਰ ਇਨਸੂਲਿਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਪੀਆਂਗੇ ਔਰ ਮਲਟੀਵਾਈਟਮਿਨਸ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਡਾਇਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਜੀ ਡਾਇਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ, ਗਲਤ ਡਾਇਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੋਂ ਬੁਝਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੱਗ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਈਟ ਜੀ ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈ, ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਫਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਤੇ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਵਾਟਰ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਅਗਰ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਹੈ। So there are causes and possible reasons which need to be found out. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰੀਏ, ਰੂਟ ਕਾਜ਼ਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਗ ਲੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇਜ਼ ਇਨਕਿਉਰੇਬਲ। ਐਨੀਬਡੀ ਹੂ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਰੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਜੀ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੈ ਕਈ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸਾਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੋਵੇ। ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਬਿਟ ਆ, ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲਾਈਟ ਬੁਝਾ ਦਈਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਿਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ। ਓਕੇ, ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਾ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਲਓ ਖੁੱਲ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਖੋਲਣਗੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਖੋਲੋ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਅਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਗਡੋਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ। ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੀ ਮਿਠਾਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਆਲਰੇਡੀ ਟੂ ਸਵੀਟ ਬਾਈ ਨੇਚਰ, ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਰਾਈਟ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਆਈ ਬਹੁਤ ਹੋਪ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਮੀ ਸਵੀਟ। Yes, ਥੋੜਾ you ਨਹੀਂ are. ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। You are really very sweet, Dr. Sir. We can say you are very sweet. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸਮਝਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਫਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਖਾਣੇ ਅਸੀਂ, ਦੇ ਆਰ ਗੁੱਡ? They are good, very good, high in protein, high in good fats, omega-3 fatty acids, right? Good in fiber and good source of selenium, magnesium, calcium. These are good things. So dry ਇਹਦਾ fruits ਕੋਈ are good. ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਮੰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਚ? ਇਜ਼ ਦੈਟ ਓਕੇ? ਮੰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਲੀ ਫੈਟ ਔਰ ਫੈਟ ਗੇਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਲਬਾਤ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ UPI ਕੋਡ, PayPal, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। So anybody can consult us from anywhere in the globe. ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK, ਦੁਬਈ, ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਕਈ, ਫੀਜੀ, Mauritius, Maldives, all over. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। So we do, because ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ I can respond back to you. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 778 970 4111 ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। So I think it's time for us to leave. It is more than 1.5 hours we've been here. Thank you so much. Thank you so much. 778 970 4111। हाँ जी, ठीक है जी। ज्ञानी जी, इनको हमने वैंकूवर से बुलाया था। हाँ जी, बहुत ਉਸਮਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ੋਭੇ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰੇ PSCH ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, PCHS ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਮਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਕਮਿਟਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਰਦਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਆਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹਰ ਫॉर दैट फैक्ट। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਅਗਰ ਆਪ ਆਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ रूबरू होवांगे, गलबात करेंगे। आप पहले बता दीजिएगा आप कब इधर इस साइड पे आ रहे हैं, तो we can arrange something. Yeah, there is an international conference. Most probably I am going to be invited as a speaker, as a keynote speaker on natural health. So probably if I come, then I'll contact. And if you can share that information, and if it's open to all, I believe there will be a ticket or something. So whosoever is interested, they can go and they can be a part of that conference. Sir, quickly कोई गल पूछ सकता ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਿਓ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਾਰਮਲੀ ਮੈਂ ਵੀਟਾਬਿਕਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੈਡਡ ਵੀਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚ ਦੁੱਧ ਤੇ 2 ਚਮਚੇ ਜਾਂ 3 ਚਮਚੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂਬੇਰੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀਟਾਬਿਕਸ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ठीक है जी? मैं बीटा ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੀਟ ਖਾਣਾ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ all the Process things which are made on the plant, they are different from the things which are made in the plant. Plant means factory, ਮਸ਼ੀਨਰੀ processing हुई है, ठीक है? और on the plant वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਬਲ ਜੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿੰਨਾ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਫੂਡ ਬਣਾ ਸਕੋ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀਟਾਪਿਕਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਆਟੇ ਦੇ ਛਾਣ ਨੂੰ ਚੋਕਰ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਚਪਾਤੀ ਬਣਾ ਲੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਊਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਉਹ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਦਲੀਆ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਲੀਆ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਦਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਬਣਾਓ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ 2-3 ਚਮਚੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਣਾ ਦਹੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਖਾ ਲਓ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਾ ਲਓ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਔਰ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਦੀ ਹੈ I thought that ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ they are from the same family no oh that's was my concept ਕਿ ਦੁੱਧ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਨੇ ਆ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ what's wrong with eating like that ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਪਣੀ concept ਸੀਗਾ ਸੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਣ ਹੈ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਣ ओके उल्टे गुण है तो मदन अंकल हम एक सेशन कभी रखेंगे कि कौन से कॉम्बिनेशन नहीं होने चाहिए हाँ जी बिल्कुल जी बहुत अच्छा जी दे आर नॉट गुड तो कुछ इस पे भी लेके आते हैं मैंने लिख लिया ये पॉइंट वरना आपने सही कहा कि हम दूध में दही डाल के उसकी लस्सी बना के पीते हैं तो देखते हैं डॉक्टर साहब आई नो आपका टाइम बहुत ज्यादा हमने ले लिया थैंक यू सो मच for being with us and hope to see you in person very soon. Thank you. God bless you, Doctor. बहुत धन्यवाद. Thank you very much. I hope it added some value, some information to all of you. Definitely. Lots of value, Doctor. Not some value, lots of value. Thank you, sir. Lots of value. I'll leave. Thank you. So, Sobia. Thank you so much. आप बहुत अच्छे से सारा हमारा हैंडल कर रही हैं तो ये हमारा जो जुलाई का था ये हमारा लास्ट सेशन था तो आप लोगों की मुझे फीडबैक चाहिए हम लोगों ने इस दफा ये हम लोगों ने पिछले 3 महीने से स्टार्ट किया हुआ है कि 2 प्रेजेंटर आते हैं एक थोड़ी फिजिकल या आपको माइंड की एक्सरसाइज कराते हैं और एक जो है वो जो प्रेजेंटर है वो किसी और टॉपिक पे बोलते हैं तो क्या ये ठीक है कि हम सिर्फ एक ही प्रेजेंटर को लेके आए आप लोग क्या कहते हैं बहुत अच्छा है दोनों बहुत अच्छा है ओके I like that too mix क्योंकि वे एक ही बोरिंग नहीं होती ठीक है वैरायटी हो जाती है जी हाँ और काफी कोशिश है कि हम एक्सपर्ट्स लेके आ रहे हैं देखिए पिछली दफा भी डॉक्टर आए थे इस दफा भी तो कोशिश है कि हम जितना एक्सपर्ट को ला सकें तो प्लीज आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग किसी एक को भी आई नो मदन अंकल आपने तो ज्ञानी जी को बुलाया हम किसी एक तक भी ये मैसेज पहुंचा सकें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसको सुन सकें आ सकें ये सब हम कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम होती है कम्युनिटी ही नहीं है 5 लोग होते हैं 6 लोग होते हैं वो प्रेजेंटर के लिए भी अच्छा नहीं है और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा नहीं है हाँ जी बेटा जी आज हम भी देख रहे थे 10 हम मेंबर थे जी मैं भी सोचता सी मैं होर भी अपने जिथे भी ग्रुप विच ये सेंड करा अपना ग्रुप जिहड़ा हैगा हाँ जी जरूर बहुत इहदा लाभ हैगा बिल्कुल ठीक है जरूर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ना पहुंचना चाहिए मैनू भी चंगा नहीं लगता जो प्रेजेंटर आंदा है ते अगे कोई सुनने वाला ही नहीं है हाँ जी ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ एक्टिविटीज नहीं सी ਹੁਣ एक्टिविटीज बहुत ने हाँ जी या कमलजीत जी आप आजकल इधर ही है किधर है अनम्यूट कर लीजिए मैं आजकल 1 महीने के लिए यहाँ आई हूँ अपनी बेटी के पास कनाडा में हूँ
So right now I'm attending from Canada. आप ओके ओके, देन आई कनेक्ट विद यू और आपसे बात करती हूँ मैं कि क्या क्या किया जा सकता है, मिलके कैसे बैठ सकते हैं। आपसे अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। Sure, sure. जी हाँ। और मदन अंकल, हो सकता है हम वेडनेसडे वाले प्रोग्राम में पीसीएचएस में कोई प्रोग्राम लेके आए। ठीक है जी। जी हाँ, हो सकता है वहां भी। वेरी गुड। मैं सोच रहा था आपने हमने उसमें ये किया था ना, मैंने टॉक व्हाट आर यू फीडिंग एग्जैक्टली, बॉडी माइंड एंड सोल के लिए। जी जी तो आई थिंक वी शुड डू इट अगेन सम टाइम। बिल्कुल, वो भी करेंगे। और अंकल, मैंने अभी तक आपका वो शेयर नहीं किया सबके साथ जो आपने लिसनिंग पे किया था। अच्छा, दैट वाज एक्सीलेंट। बल्कि आप भी प्लीज किसी वक्त उसमें कर दें, क्योंकि वो मुझे व्हाट्सएप पे नहीं आया था ना, तो मैं डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकी थी। और मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। अंकल, आप खुद शेयर करें, ऑल इज वेल पे। लोग तो चलो, पता नहीं क्या क्या शेयर करते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती। लाइक रिपीटेडली मैं उन्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज ये ना शेयर करें, ना करें, ना किसी और लैंग्वेज में करें, ना मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, लेकिन लोग सुन नहीं रहे हैं। नहीं, ये बात ठीक है कि मैं भी कहता हूँ मॉर्निंग से कोई खास फायदा नहीं होता। हाँ, गुड मॉर्निंग करते हैं उसको आगे। अब इतने मैसेज आज हो चुके होते हैं जमा कि 50 तो गुड मॉर्निंग ही है। देखिए, हमने ये इसलिए ओपन टू ऑल रखा था कि लोग अपने दिल की बातें शेयर कर सकें, वरना तो बहुत इजी है कि एडमिन कंट्रोल ले ले। हाँ जी। हम चाहते थे कि टू वे हो, चलो, लेकिन वो लोग सुन नहीं रहे हैं, वो फॉलो ही नहीं कर रहे जो हमने रूल्स हैं। अब मेरा दिल चाहता है कि हर दफा कोई पोस्ट करे ना ऐसा, उसके फौरन बाद रिमाइंडर भेज दूं। फिर मुझे लगता है कि वो ऑफेंसिव फील ना हो। तो हाँ, नहीं, आप ये कह देना सभी को कि ये जो दूसरे मैसेज हैं, एक तो है, मैं किसी से पहले माफी मांग लूं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा रिलीजियस के लिए कोई फोटो, कोई किसी और का नाम लिख के, ये सभी का अपना पर्सनल है चीजें। और ये गुड मॉर्निंग का, जहाँ फ्लावर्स का, जहाँ कुछ और ऐसा कोई बात है तो उसको लिख के भेजो। जी, जो भी कोई ये बात है ना उसको। और बहुत सी ऐसी है कि कोई हिंदी में है, कोई पंजाबी में है, कोई उर्दू में है, सभी नहीं जानते। स्पेशली कनाडा में कल्चरल एंड रिलीजन टॉलरेंस जो है वो बड़ी एक्सेप्टेड है। तो और वैसे भी ये बड़े प्राइवेट वो है, पर्सनल टू एन इंडिविजुअल है। सो ये मैसेजेस हमें शेयर नहीं करने चाहिए। नहीं चाहिए करने, मैं तो खुद कहता हूँ ये नहीं करने चाहिए। Concerning मेरा भी यही विचार है कि ये रिलीजियस मैसेज जो है ना, वो नहीं ये करना। प्राइवेट है, इसमें ये कहना कि ये रिलीजन अच्छा है या ये रिलीजन अच्छा नहीं है, दिस इज वेरी रॉन्ग, स्पेशली इन दिस कंट्री जहाँ सबकी एक्सेप्टेंस अलाउड है। जी जी, तो बिल्कुल। जो हमारे सोबिया, आपने, मुझे नहीं पता आपने देखी कि नहीं, तो हमारे कुछ ग्रुप रूल्स हैं जी जो कोई फॉलो नहीं करता। जी, तो आप एडमिन आपको चाहिए उस्मा जी कि जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर है उसको डिलीट कर दे फॉर एवरीबॉडी। अगर 2-4 दफा होगा तो शायद कोई ना कोई समझ जाएगा। इसको एडमिन का ही फिर काम कितना बढ़ जाता है, फिर वो तो इसी काम तो बढ़ेगा, लेकिन अगर कोई सुनता नहीं, अपने आप करने को तैयार नहीं, तो दूसरा तो वो बात है ना, फिर दूसरा तरीका। क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो कि नेगेटिविटी फैला सकती हैं, और बजाय इसके कि लोग करीब लाएं, वो थोड़ा सा दूरी क्रिएट कर सकती हैं। मैंने आज सुना नहीं है, लेकिन मुझे ये पता चला कि आज कोई पोस्ट ऐसी थी जो कुछ लोग अनकंफर्टेबल हुए। मैंने देखी नहीं है अभी तक। जी, उसमें आप देख लीजिएगा, बड़ी रिपल्सिव पोस्ट है। इस लिहाज से है कि नॉट दैट वी फॉलो सर्टेन रिलीजन, बट फॉर एनी रिलीजन, हमें रिलीजन की बातें, आई गेस किसी भी ग्रुप में जो इंटेंडेड फॉर समथिंग है, तो उसमें रिलीजन और पर्सनालिटीज और पर्सनल चीजें नहीं बोलनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर उस पर एक कॉमेंट लिख दें कि दिस इज रिलीजियस टॉपिक और कुछ ऐसा लिख के, एंड वी हैव टू डिलीट इट, ताकि उन्हें पता चले हम डिलीट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का करके कैसे लिख सकते हैं, रिलीजियस कमेंट्स और रिलीजियस न्यूज should not be posted on this in this group. करते हैं। जी हाँ,
कोई भी जो फोटो डालते हैं, जो कुछ और करते हैं, अभी देखो कोई भी आता है प्रोग्राम रिलीजियस तो 100-200 एक ही तरह की ईमेल्स व्हाट्सएप आ जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और जैसे मेरी मदर का तो बहुत जल्दी वो मेमोरी फुल हो जाती है, वो कहती हैं कि सारा तो तुम लोगों के इससे भर जाता है मैसेजेस से। सही बात। मैं तो वैसे मैं सच बता दूं, मैं तो थोड़ी देर के बाद वो जो कहते हैं ना क्लीन द चैट, मैं चैट Yes. उसको हर 1-2 महीने के बाद क्लीन करता हूं सारे को। ठीक मैं है। तो चेक भी कर देती हूँ क्लियर चैट। क्योंकि अभी जैसे उसमें कहा इतने आते हैं, इतने होते हैं कि आपको पता नहीं है कि क्या क्या है, और आप क्या देखा था क्या नहीं। अभी जो 2 महीने की पहली है उसको क्या रखेगा नंबर। चलिए ठीक है। अपने जो मैंने कहा उसके लिए माफी भी चाहता हूँ अगर किसी को हर्ट नहीं हुआ हो। नहीं नहीं। तो ये मेरी अपनी है कि हमें इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। मैच्योर है। हम जनाब बहुत मजे की एक्टिविटीज ला रहे हैं। सो सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे 4 o'clock। और सोबिया कहती है 3:55 इज बेटर। Yes, चलिए, थैंक यू सो Okay. मच। Okay, thank you. Thank you. ओके जी, बाय। Okay, Saranu, have a nice evening. Stay safe. You too. Thank you so much. अभी मैं थोड़ी देर में दूसरी मीटिंग